Nisha Rana, in charge Swami Vivekanand Subharati University Meerut and member AFTEFS Society, warmly welcome all distinguished dignitaries, eminent academicians, scientists, researchers, faculty members, students, industry experts, and participants from across the country to the day 4th of Krishi Manthan, the 21-day summer school training program. The unique academic initiative is being jointly organized by Rani Lakshmibai Central University, Jhansi, University of Agricultural Sciences, Raichur, Swami Vivekanand Subharati University, Meerut, J.D. Goenka University, Gurugram, Sant Ghiriya Guru Vishwavidyalaya, AFTEFS Society, and Vital Biotech Education Group, Kota. The program has been started from 1st June and will be continued to 21st June 2026, focusing on agriculture, horticulture, forestry, sustainability, and entrepreneurship, technology, and skill developments. Moving forward, it's my profound privilege to introduce and invite our speaker, Professor Sanjay Swami. As you know, Professor Sanjay Swami is one of the most eminent speaker, and he is well known in the field of academics. Sir has published many research papers in national and international journals. He is presently working as Dean of Faculty of Agriculture, Pastiganj, Arunachal Pradesh, under Central Agriculture University, Imphal. His area of expertise is in soil science, agriculture chemistry. He is an active researcher in the field of conservation and management of natural resources, especially in Indian Himalayan region, for more than 20 years. He has contributed more than 160 research papers, technical articles, various journals, and international reputed journals. He has also been credited more than 25 standard books and more than 50 book chapters. Sir is also guiding 7 PhD students and he has guided 20 master levels of students. Sir is holding prestigious position in National Fellow of Soil Conservation Society, SCSI, Senior Global Fellow and Grassroots Institute, Montreal, Canada, and Fellow of the Himalayan University Consortium, ICIMOD, Kathmandu, Nepal. He is actively serving as the chairman of Meghalaya State Chapter and Vice President East of SCSI, New Delhi. Now, I would like to invite Professor Sanjay Swami to kindly deliver his lecture. Professor Sanjay. Okay, yes, thank you, Dr. Nisa, for nicely introducing me. Anyway, good evening, all the participants available on this platform. I hope that my voice is coming. Yes, sir, your voice is. Okay. Yes, sir. Okay. So at the outset, I welcome all the participants across the country in this Krishi Manthan 21 days training, this training program, summer school training program on transforming agriculture, horticulture, forestry through modern science for food security, environmental sustainability, and entrepreneurship and skill development. So I hope that this program is on 4th day because it was supposed to be start from 1st of June. So today is 4th. So I think we are on the 4th day. And friends, I hope that in the previous days you have had good lectures. But the topic which I want to deal today is completely different. It relates to the hill agriculture, hill or mountain agriculture. So the topic which I have taken is regarding this terrace farming. So let me share my slide first, then we'll discuss on it. So I hope my slides are visible. Yes, sir. Okay. So friends, where we have hilly areas or mountain areas, it is very difficult to cultivate lands. And you know that the soil resources are very limited. It is very difficult to horizontally expand the agricultural land. And one of the most important thing is
that whatever land resource we have with us, we want to utilize that land in a very efficient manner so that we can feed our growing population. And for that, even in the hilly areas, whatever land or hill slopes are available, we want to utilize those hill slopes also. Now the thing is that how in a best way we can utilize the hill slopes, and for that I have taken this traditional terrace farming system. How the ancestors, how the traditional indigenous farmers, they have evolved this terrace farming system, particularly in the Indian Himalayan region and in other hilly or mountain areas, that I want to discuss with you today. Friends, you know that this Indian Himalaya, it spreads right from J&K, Ladakh, Uttarakhand, Himachal, Arunachal, and Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Sikkim, Tripura, Assam, and in Assam only two districts are there, which are in the hilly area terrain. And of course, in the same situation in West Bengal also, where we have only the limited areas under hills. Then it, Just sorry to interrupt. yeah, Kindly use mixed language, bilingual, because few students from Hindi background, so they are okay, much. okay, 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 okay. So Okay. friends, Thank you so much, sir. okay, if we discuss about this Himalayan region ये कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, दैट आई एम एक्सप्लेनिंग. अभी ऊपर से हम चलते हैं, राइट फ्रॉम लद्दाख, वहां से लेके ये हमारे जो है हिल स्टेट्स है, जिसमें लद्दाख के बाद में J&K है, उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश है, मणिपुर है, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, आसाम के खाली दो ही डिस्ट्रिक्ट है, कार्बी एंगलोंग एंड डिमा हसाओ. इन वेस्ट बंगाल दार्जिलिंग एरिया जो है, दैट आल्सो कम्स अंडर हिल एरिया, हिल जोन. और ये पूरा जो स्ट्रेच है, दिस स्ट्रेच इज ऑलमोस्ट अराउंड 2500 किलोमीटर, and nearly 15 million people they resides in this region. मतलब जो ये हिली एरिया है, ये लगभग लद्दाख से स्टार्ट करके हम नॉर्थ ईस्ट तक आते हैं तो 2500 किलोमीटर के आसपास का ये एरिया है. और इस हिली एरिया में लगभग 50 मिलियन जो है वो लोग इसके अंदर रहते हैं. अभी बात करते हैं इस एरिया की, तो ये एरिया बहुत ही डाइवर्स है. इसमें डिफरेंट टाइप की इकोनॉमिक एक्टिविटी चलती है. इसका एनवायरनमेंट हर जगह अलग अलग है, अलग अलग वहाँ के सोशल रिचुअल्स है, अलग ही वहाँ का हर जगह का जो है पॉलिटिकल सिस्टम है. नाउ कमिंग टू दिस whole system, geographically if you see, the hill area covers around 0.53 million square kilometer area of our country. और ये जो एरिया है, ये हमारा जो देश है उसका 17% के आसपास है. एरिया कितना है? 0.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर. और ये एरिया लगभग 17% के आसपास बनता है. अब जो ये पूरा एरिया है हिली एरिया, इसको हमने वी हैव डिवाइडेड इन बायोजियोग्राफिक जोन्स. और वो बायोजियोग्राफिक जोन्स हिल का जो स्ट्रक्चर है, उसका साइज है, किस टाइप की उसकी बनावट है, ऑन दैट बेसिस वी हैव डिवाइडेड मेनली ऑन इन थ्री पार्ट्स: ट्रांस हिमालय, देन द मेजर हिमालय एंड द नॉर्थ ईस्ट हिमालय. ट्रांस हिमालय में हमारा जो लद्दाख का माउंटेन है वो है, तिब्बतियन प्लेटू है, और सिक्किम का जो ट्रांस हिमालयन एरिया आता है वो है. मेजर जो हमारा हिमालय है वो नॉर्थ वेस्ट हिमालय है, उसके बाद में वेस्ट हिमालय है, देन सेंट्रल हिमालय है, और ईस्ट हिमालय है. इसी तरह से जब नॉर्थ ईस्ट हिमालय की बात करते हैं तो उसमें ब्रह्मपुत्रा वैली और नॉर्थ ईस्टर्न हिल्स, ये दो उसमें आते हैं. और ये लास्ट कॉलम जो है, दैट इंडिकेट द परसेंट ऑफ जियोग्राफिकल एरिया इन ईच पर्टिकुलर zones and in particular province.
ये जो प्रोविंस है इसके अंदर, जैसे फर्स्ट ए जो हमारा है वो लद्दाख माउंटेन्स है, इसका 3.3% जियोग्राफिकल एरिया जो है हमारी कंट्री का इसमें आता है। तो लाइकवाइज फॉर एवरी बायोजियोग्राफिक प्रोविंस I have mentioned the percent of geographical area. Now this map shows how this Himalayan region is stressed or located on the crown of our India. जो ऊपर का पार्ट है जिसको हम अपना कंट्री है, अपना देश है, उसका एक मुकुट बोलते हैं, वो कैसे उसमें पूरा दिखाया हुआ है। इसमें 2 यूटी है और 11 स्टेट है। यूटी की बात करें तो आज की डेट में लद्दाख और जे एंड के, ये दो जो यूटी है, नंबर 1 ऊपर से चलते हैं तो लद्दाख है, नंबर 2 जम्मू एंड कश्मीर है, देन नंबर 3 पे हिमाचल है, नंबर 4 पे उत्तराखंड है, फिर बीच में नेपाल आ गया, आगे नंबर 5 पे सिक्किम है, फिर नंबर 6 पे अरुणाचल प्रदेश है, 7 पे नागालैंड है, 8 पे मणिपुर है, 9 पे मिजोरम है, 10 पे त्रिपुरा, 11 पे मेघालय एंड 12 पे आसाम जो है उसकी खाली 2 ही डिस्ट्रिक्ट हैं, और 13 वेस्ट बंगाल का भी कुछ एरिया जो है इसमें हिल एरिया में आता है। अब आप समझ सकते हो कि जो हमारा ऊपर का जो मेन पार्ट है वो इंडियन हिमालयन रीजन कहलाता है। नाउ कमिंग टू दी नॉर्थ ईस्ट हिमालय, जो अभी लास्ट वाला जो बात किया था हमने उसमें हम आ जाते हैं। तो नॉर्थ ईस्ट हिमालय की अगर बात करते हैं तो इट इज वेरी कल्चरली डाइवर्सिफाइड रीजन। मतलब ये जो कल्चर है यहाँ की वो बहुत ही डाइवर्स है। एंड इन मेनलैंड जनरली वी सी दैट व्हेन वी कॉल नॉर्थ ईस्ट इंडिया, तो इसका मतलब वहां तो सारे एक ही जैसे लोग और एक ही जैसा एरिया, बट इट इज नॉट लाइक दिस। इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया वी हैव 8 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट। सिक्किम जो है उसको बाद में ऐड किया था, पहले 7 स्टेट थे ना, इसीलिए हम इसको 7 सिस्टर्स बोलते हैं नॉर्थ ईस्टर्न की, एंड 1 ब्रदर दैट वी कॉल जनरली एज सिक्किम की 7 बहनें हैं और एक भाई है। तो ये सब मिलके जो है नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट को बनाते हैं। एंड इन एवरी स्टेट वी हैव डिफरेंट फैसिनेटिंग ट्राइब्स। अलग अलग ट्राइब है, हर स्टेट में अलग ट्राइब है, और विद इन स्टेट भी बहुत अलग अलग ट्राइब है। दे हैव देयर डिफरेंट टाइप ऑफ लैंग्वेज। सब ट्राइब्स अपना अपना अलग लैंग्वेज बोलते हैं, सबका अपना अपना अलग ड्रेसिंग सेंस है, अलग उनका पहनावा है। और ये सब कहाँ से जनरेट हुआ? ये सब एग्रीकल्चर के साथ जुड़ा हुआ है, क्योंकि पहले जो है एग्रीकल्चर के अलावा यहाँ पे और कुछ भी सिस्टम नहीं था जीवन जीने का। तो एग्रीकल्चर के साथ में ही इनकी कल्चर जुड़ी हुई है। एंड all the rituals, all the festivals, they are linked to the agriculture practices, or agriculture practices because of the hilly, very tough terrain. This agriculture production system in this region is called or characterized by CDR. CDR means it is very complex, it is very diverse and very risk prone. आप सबको पता है कि जहाँ हिली एरिया है वो बहुत डिफिकल्ट एरिया रहता है, बहुत कॉम्प्लेक्स एरिया है, बहुत तरह की वहाँ डाइवर्सिटी है और बहुत ही रिस्क रहती है एग्रीकल्चर की। नाउ नेक्स्ट करेक्टराइजेशन यू सी द लो क्रॉपिंग इंटेंसिटी। वहाँ जो ट्राइबल लोग हैं वो बहुत ज्यादा ग्रीडी नहीं है, एक एक क्रॉप लेंगे उसके बाद खेत खाली पड़ा रहेगा। एंड सब्सिस्टेंस फार्मिंग, वो ज्यादा मतलब और नहीं है कि जीवन जीने के लिए जितना बस खाना खाने के लिए मिल गया उतना ठीक है, ऐसा नहीं है। उसको एक इंडस्ट्री के रूप में नहीं लेते हैं, खाली बस जीवन जीने का एक बस मिल जाए उतना बहुत है। नाउ कमिंग टू दी दिस टेरेस फार्मिंग, अब बात ये आती है कि व्हेन वी हैव हिल स्लोप्स, जब हिली एरिया है, हिल्स है, तो उसकी जो लैंड है उसको हम कैसे यूटिलाइज करेंगे? वहां तो क्रॉप रुकेगी नहीं, वो तो जैसे ही बरसात आएगा एवरीथिंग विल बी वास्ट अवे विद द रेन वाटर। तो उसको यूटिलाइज करने के लिए देर इज ए मेथड। ठीक है, व्हाट डू वी डू वेयर
where hilly or slopy land is cut into a series of flats, steps और terrace। जो ये टेरेस फार्मिंग है इसको स्टेप्स फार्मिंग भी बोलते हैं। क्या करते हैं कि उस पूरे एरिया में हम उसको टुकड़ों में काटते हैं और उसको काट के नीचे मिट्टी ला के उसको उसकी फ्लैट जो है टेरेस या जिसको सीढ़ी की तरह बोलते हैं स्टेप्स उसकी बनाते हैं। एंड ईच टेरेस एक्ट लाइक ए स्मॉल फील्ड दैट कैन होल्ड सोयल एंड वाटर। अब ये जो छोटा टेरेस है वो इंडिपेंडेंटली इट विल जस्ट वर्क एज ए स्मॉल फील्ड, एक छोटे खेत की तरह काम करता है। एंड वी कैन रिटेन द सोयल एंड वाटर, दोनों सोयल भी कंजर्व कर सकते हैं, वाटर भी वहां रिटेन कर सकते हैं। एंड ऑनेस्टली इट इज नॉट जस्ट प्रैक्टिकल। मैंने इसमें ये बताया है कि ये जब आप कभी आपने बाई एयर जर्नी की है और कहीं हाइट पे आपको जाने का मौका मिला है तो आपने कभी देखा होगा कि पूरे पहाड़ी एरिया में वेयर वी हैव टेरेस फार्मिंग ऐसे लगता है कि जैसे जो हिल्स के अंदर कुछ ग्रीन कलर का पेंटिंग किया हुआ है। क्यों? क्योंकि टेरेस के अंदर जो है वो मोस्टली हमारे पेडी या कोई दूसरी क्रॉप होती है दैट लुक्स लस ग्रीन क्रॉप। एंड द स्लाइडर जो खड़ा पार्ट होता है वो थोड़ा ओपन रहता है, वहां पे इतनी ग्रीनरी जनरली नहीं होती है। तो वो ऐसे लगता है जैसे बहुत सुंदर से एक नेचर ने में एक पेंट किया हुआ है। इट लुक्स वेरी वेरी अट्रैक्टिव। नाउ अब टेरेस फार्मिंग क्यों करते हैं, इसके क्या फायदे हैं? सीधा खेत होगा, आपकी मिट्टी बह के चली जाएगी। सो द टेरेस फार्मिंग रिड्यूसेस सोयल इरोजन। और कितना सोयल इरोजन? ऑलमोस्ट 52%, मतलब आधे से भी ज्यादा जो है वो हमारा सोयल जो है उसको ये रिटेन करता है, वो सोयल इरोजन को कम कर देता है। इंक्रीज सोयल मॉइस्चर कंटेंट बाई 12.9%। अब आप देखिए जो पानी बह के चला जाता था वो जो है सारा निकल जाता था। अब ये जो छोटे छोटे आपके टेरेस बन गए, इन दोज टेरेसेस वी कैन रिटेन दी वाटर और यू कैन से दी सोयल मॉइस्चर। इससे सोयल मॉइस्चर हमारा ऑलमोस्ट 30% जो है वो बढ़ जाता है। एंड सोयल मॉइस्चर आप हमारा बढ़ गया, इसका मतलब पानी की अवेलेबिलिटी फसल को बढ़ गई। ठीक है, सोयल हमारी फर्टाइल जो टॉप सोयल थी वो इरोजन होके नहीं गई। एंड दीज इवन टू प्रैक्टिसेस इंक्रीजेस द यील्ड अप टू 45%। कोई भी क्रॉप ले लो जो आप सिंपल लगा रहे हो और आप टेरेस बना के लगा रहे हो तो उसमें आपका यील्ड जो है ऑलमोस्ट 45% ज्यादा आता है। नाउ नेक्स्ट थिंग इज कि भाई ये टेरेस फार्मिंग कहाँ कहाँ होती है? नाउ इट इज वाइडली यूज्ड इन एशिया, Andes of South America, particularly in the Peru and some part of Europe and Africa। एशिया की बात करते हैं तो चाइना इज नंबर 1। चाइना के अंदर ये बहुत होती है और वहां पे जो राइस टेरेस है होंगहे रीजन में दैट इज फेमस, वो यूनेस्को हेरिटेज साइट है, लोग उसको भी देखने आते हैं। मैं आगे इंडिया की भी बात करूंगा। वी आल्सो हैव अपातानी राइस टेरेस, वो भी यूनेस्को हेरिटेज साइट है। यहाँ भी लोग जीरो वैली के अंदर है, बहुत दूर दूर से देखने आते हैं। सो इन एशिया particularly in our country, then Nepal, Bhutan, China, Japan and Philippines, these are the countries where terrace farming is widely used। and in Andes भी हमारे हिमालय की तरह है, पहाड़ी एरिया है पूरा एंडीज। ठीक है, तो वो है साउथ अमेरिका में पर्टिकुलरली इन पेरू। और जो ये टेरेस फार्मिंग सिस्टम जो जनरेट हुआ इसका ओरिजिन हुआ ये भी पेरू से ही हुआ था। ठीक है, और कुछ पार्ट जो है यूरोप या अफ्रीका के हैं वहां पे भी टेरेस फार्मिंग सिस्टम है। नाउ कमिंग टू द रीजनल डोमिनेंस, अब हमारे रीजन की बात करें तो चाइना इज लीडिंग विद अप्रोक्सीमेटली 13.2 मिलियन हेक्टेयर। लेकिन पेरू जो है जहां से इसका ओरिजिन हुआ था वहां नाउ ओनली 2 मिलियन हेक्टेयर्स लैंड इज अंडर दिस टेरेस फार्मिंग। नाउ कमिंग टू दी टाइप्स ऑफ टेरेस टेक्निक, ये टेरेस जो आप बनाते हैं ये किस किस टाइप की होती है? तो इसमें जो है देर आर टू मेन टाइप्स, वन इज ग्रेडेड टेरेसिंग एंड सेकंड इज लेवल और लेवल टेरेसिंग। ग्रेडेड टेरेसिंग में क्या होता है कि हमने कट और फिल करके
एक टेरेस बना लिया, बट दैट स्लोप, दैट विद इन दिस ग्रेडेड टेरेस, इसका ग्रेडेड क्यों बोलते हैं? बिकॉज द स्लोप्स कैन वेरी अलोंग द लेंथ ऑफ टेरेस टू डायरेक्ट वाटर इन द डिजायर्ड डायरेक्शन। उस एक टेरेस के अंदर भी लेवल नहीं होता है पूरा, उसमें भी लैंड जो है ऊंची नीची होती है, और वो ऊंचा नीचा किस हिसाब से रखते हैं कि जिस डायरेक्शन में हमें पानी का मूवमेंट करना होता है उस डायरेक्शन में हम थोड़ा स्लोप रख देते हैं, और जिधर नहीं करना उधर थोड़ा सा हाइट रख देते हैं। तो ये जो है इसमें सोयल या आप उसका लेवलिंग एग्जैक्टली नहीं होके कुछ ऊंचा नीचा रखते हैं, इसीलिए उसको ग्रेडेड टेरेसिंग बोलते हैं। जबकि लेवल टेरेस में क्या होता है, इन पर्टिकुलर वन टेरेस, ये पूरा जो है आप कंटूर लाइन को फॉलो करके बनाते हैं, एंड दैट एंश्योर द यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर थ्रू आउट द टेरेस। ये पूरा लेवल टेरेस होता है कंटूर के बेस पे। तो इसमें कहीं भी ऐसा नहीं है आप इफ यू आर just irrigating or just means giving the water, then it uniformly distribute throughout the terrace। वो पूरे टेरेस में एक इवनली वो डिस्ट्रीब्यूट होगा, कहीं भी ऐसा नहीं है कि कोई डिप्रेशन है या कहीं पानी ज्यादा रुक गया या कहीं पानी कम हो गया। इट इज नॉट लाइक दिस। नाउ कमिंग टू द बेंच टेरेस। इसको बेंच टेरेस हम क्यों कहते हैं, क्या इसमें क्या कैसे बनाते हैं, ऑल दोज थिंग्स आई एम डिस्कसिंग हियर। दिस बेंच सिस्टम इन फार्मिंग रिजेंबल्स बेंचेस और स्टेप्स अक्रॉस द स्लोप। जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि पूरे खेत जब देखते हैं ऊपर से नीचे तक पहाड़ी एरिया में, तो ये जैसे सीढ़ी बनती है, हमारे स्टेप्स बनते हैं, उसी तरह का स्ट्रक्चर इसमें दिखता है। और ये फ्लैट प्लेटफॉर्म जैसे दिखते हैं, रेगुलर इनका इंटरवल होता है। ठीक है, सो सच रेगुलर अरेंजमेंट इज लेबर कंज्यूमिंग एंड सजेस्ट इंटेंसिव सॉइल डिस्टर्बेंस। अब ये बनाने के लिए इसमें खूब लेबर की जरूरत पड़ती है, खूब मेहनत लगती है, और जो सॉइल है उसको बहुत ज्यादा नीचे आके फ्लैट करना पड़ता है। इन राइट हैंड साइड द टॉप पिक्चर, जस्ट यू कैन इमेजिन दैट हाउ दिस फील्ड इज बीइंग प्रिपेयर्ड। जो बीच का जो इंटरवल है, स्लोप है, उसको कैसे कटिंग करके बनाया हुआ है। दिस लाइन, द डायगोनल लाइन इंडिकेट्स दैट, आई विल एक्सप्लेन इन द कमिंग स्लाइड्स आल्सो। तो ये एग्रीकल्चर जो है हिल एरिया का जो है सबसे बेंच टेरेस जो है कॉमन फीचर है वहां का, जिसके कारण हम सोयल और वाटर को रिटेन कर सकते हैं। नाउ द अनदर टाइप इज कंटूर टेरेसिंग। ये कंटूर जो है, जो हमारा टोपोग्राफी है, जो रिलीफ है, उसके कंटूर पे बनता है, एंड दैट इज ओनली रीजन वी कॉल इट कंटूर फार्म, कंटूर टेरेसिंग। थर्ड वन इज पैरेलल टेरेसिंग। इसमें वही जो मैंने अभी थोड़ा बताया था, लेवल और पैरेलल, इसमें इसको कंटूर को हम फॉलो नहीं करते, सिंपल हमारा मेन मोटो इसमें ये होता है कि इसको हमें लेवल रखना है, सो दैट सो मेनी टाइप ऑफ एग्रीकल्चरल ऑपरेशंस वी कैन डू इजीली। जैसे अगर इसमें पावर टिलर चलाना है, कुछ और करना है, तो इसका मूवमेंट जो है बहुत अच्छे से हो सकता है। बट इट इज लेबर इंटेंसिव, it is cost intensive, and it is time consuming. Now the another type is terrace farming is half moon terracing। अभी बात ये है कि ये तो हमने थोड़ा सीधा लैंड है उसकी बात कर लिया, बट एक कोई हिल है और उसको पूरी हिल को, खड़ा हिल है, उसके चारों तरफ ही हमें खेती करनी है, तो हम क्या करेंगे? देर इज नो ऑप्शन। जो हम टेरेस बनाएंगे वो उस पहाड़ी के चारों तरफ ही बनाएंगे। तो उसमें क्या है कि ये जो टेरेस बनती है, ये जैसे अपना हाफ मून होता है उस शेप में आ जाती है, और इसीलिए इनको हाफ मून टेरेस बोलते हैं। नाउ इन राइट हैंड साइड यू कैन सी द पिक्चर, इट लुक्स लाइक हाफ मून इन शेप। Now these terraces are distributed in different states or different parts of our country। तो लेवल टेरेस जो है ये ज्यादातर आपको उत्तराखंड में, सिक्किम में, मेघालय में मिल जाएगा।
बेंच टेरेस जो है वो हिमाचल प्रदेश और पर्टिकुलरली जो वेस्ट बंगाल में दार्जिलिंग ये वाला एरिया है वहां दिख जाएगा। ग्रेडेड टेरेस जो है ये ज्यादातर साउथ इंडिया के अंदर है, बट इन पार्ट ऑफ आसाम इट इज आल्सो अवेलेबल। देन राइजर टेरेस क्या होता है, दो जो टेरेस है उसके बीच वाला जो खड़ा पार्ट होता है उसको जो है हम राइजर बोलते हैं, और वो राइजर जितना ज्यादा बड़ा होता है वो इसका मतलब स्लोप जो है हिल का वो उतना ही ज्यादा है। और ये नॉर्थ ईस्ट के अंदर जो है, क्योंकि हिल स्लोप बहुत ज्यादा है, इसलिए यहाँ पे आपको राइजर टेरेस के फॉर्म में इसको देखने को मिल जाएगा। टेरेस तो वही है, बेंच टेरेस या ग्रेडेड टेरेस या लेवल टेरेस, बट द हाइट ऑफ राइजर इज मच हाई। अभी बात यह है कि ये इसको कैसे बनाना है। तो बनाने के लिए फॉर प्रिपेयरिंग द टेरेस, द फर्स्ट एंड इम्पोर्टेंट मेथड इज कट एंड फिल मेथड। इसमें क्या करते हैं कि जो ऊपर वाला पार्ट है हिल का उसको हम खोदते हैं, वहां से मिट्टी को निकालते हैं और नीचे की तरफ लाके इसको फिल करते हैं, ताकि हम एक लेवल्ड, एक जो है हमारे को एक तरह का प्लेटफॉर्म टाइप स्ट्रक्चर जो है हम उसका बना लें। अभी बात यह है कि जो कट और फिल दोनों करना है उसका सोयल मास जितना है वो मतलब बराबर होना चाहिए। अगर आपने कटिंग किया, वो सोयल वो मिट्टी कम है फिल करने वाले से, तो आपको मिट्टी बाहर से लाना पड़ेगा। एंड इन हिली एरिया ब्रिंगिंग सोयल फ्रॉम द रेस्ट ऑफ एरिया इज वेरी डिफिकल्ट एंड वेरी कॉस्ट इंटेंसिव। बाहर से मिट्टी लाके डालना तो बहुत मुश्किल काम है। इसलिए इस चीज को ध्यान देना चाहिए कि जो हम कटिंग कर रहे हैं वो सोयल मास और जो फिल के लिए हमें रिक्वायर्ड जो सोयल मास है वो दोनों लगभग बराबर हो। देन अभी ये तो हो गया इसका मेथड, कट एंड फिल मेथड। अब इसके लिए पूरा प्लानिंग से चलना पड़ता है। उसके लिए क्या क्या स्टेप है, तो फर्स्ट वी हैव टू डू साइट सर्वे एंड प्लानिंग। हमें सबसे पहले टोपोग्राफी का सर्वे करना पड़ता है। सो हमें जो हमारा जो है टेरेन जो है उसकी मैपिंग करनी पड़ती है, और हमें हाई और लो पॉइंट्स कौन से हैं उनको भी करना पड़ता है कि लोवेस्ट पॉइंट कौन सा है, हाईएस्ट पॉइंट कौन सा है। ठीक है। उसके बाद में हमें कोई एक बेंचमार्क बनाना पड़ता है, हमें कोई एक पॉइंट, एक रेफरेंस पॉइंट फिक्स करना पड़ता है, जिससे हमें ये पता लगे कि भाई हम इस लेवल तक कटिंग करेंगे, इस लेवल तक फिल करेंगे। अदरवाइज तो अगर आपका कोई बेंचमार्क नहीं होगा तो हाउ यू विल डिसाइड कि भाई हमें कितना मिट्टी काटना है, कितना भरना है। देन कैलकुलेट वॉल्यूम। ये इसी बेस पे जो है हमें वॉल्यूम को कैलकुलेट करना है कि हमें कितना मिट्टी डालना पड़ेगा, कितना काटना पड़ेगा। एंड एज आई हैव अर्लियर जस्ट सेड दैट दिस वॉल्यूम ऑफ कट सोइल मस्ट इक्वल टू वॉल्यूम रिक्वायर्ड फॉर फिलिंग दी सोइल मास। दोनों जो है बराबर होगा देन इट इज गुड। अदरवाइज तो बाहर से लाना पड़ेगा, तो ये बहुत मुश्किल काम है, ये नहीं हो पाता। ठीक है। देन डिजाइन कंसिडरेशन, चूज ए टेरेस टाइप। आपको कौन सा टेरेस बनाना है, किस टाइप का टेरेस बनाना है वो आपको डिसाइड करना है। ठीक है। लेवल फॉर हाई रेनफॉल, जहां बरसात ज्यादा है वहां पे आपको लेवल टेरेस बना लेना चाहिए। रिवर्स स्लोप फॉर वाटर हार्वेस्टिंग। रिवर्स स्लोप में क्या होता है कि आगे वाला जो टेरेस का पार्ट है वो थोड़ा ऊंचा होता है, तो उसमें पानी जो है खड़ा रहता है फिर। ठीक है। तो रिवर्स स्लोप कहाँ लगाता है, जहां में वाटर को थोड़ा सा रिटेन करना है, वाटर हार्वेस्टिंग करना है। एंड एंश्योर स्लोप्स डू नॉट एक्सीड 25 डिग्री। भाई ये एंश्योर जरूर करना है कि कोई भी स्लोप जो है वो 25 डिग्री से ज्यादा नहीं हो। देन क्लियर वेजिटेशन। अभी नेक्स्ट स्टेप ये है कि हमें वहां पे कोई भी पेड़, झाड़, झाड़ू जो भी कुछ लगा हुआ है, कोई रूट्स, स्टेबल्स जो भी कुछ है, वो साइट जो है उसको हमें ठीक करना है, उसको हमें करना है। देन रिमूव टॉप सोयल, दिस इज आल्सो ए वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। अभी क्या है कि हम जब सोयल को ऊपर से कटिंग करेंगे तो ऊपर का जो टॉप वाला सोयल है वो नीचे चला जाता है फिल करते टाइम। तो
तो हमें क्या करना है कि जो ऊपर का टॉप जो सोयल है जो फर्टाइल होता है, उस सोयल को टॉप 15 to 20 मीटर वाला सेंटीमीटर का जो सोयल है उसको ऊपर से स्क्रैप कर लो, उसको हटा के एक अलग से उसको रख लीजिए। ठीक है, ये बाद में हमें काम आएगा। काम किस आएगा कि व्हेन वी हैव कंप्लीट फिलिंग, जब हमने नीचे का पार्ट जहाँ पे फिलिंग करना है सोयल का वो फिलिंग हमारा कंप्लीट हो गया, देन ऑन ईच बेंच, ठीक है, ऑन ईच टेरेस वी हैव टू स्प्रेड दिस टॉप फर्टाइल सोइल। वो वाला जो सोइल जो हमने अलग से रखा है उसको बाद में हम उसको यूनिफॉर्मली स्प्रेड करते हैं ताकि वो टॉप वाले सोइल जो है वापस हर टेरेस के टॉप पे आ जाए और हमारे सोइल की फर्टिलिटी बनी रहे। देन स्टेकिंग, ये स्टेकिंग वाला जो है, जो इंटरनल एरिया कौन सा है आउटर कौन सा है इसके लिए थोड़ा पैगिंग करना पड़ता है। देन नाउ द मेन पार्ट कंस्ट्रक्शन, इसको कैसे करते हैं, कट एंड फिल आपको बताया है। तो टॉप डाउन मेथड, ऊपर वाले पार्ट को पहले काटना स्टार्ट करना है। इफ यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम डाउन साइड दिस इज द रॉन्ग वे, सबसे टॉप से स्टार्ट करना है। जनरली वी स्टार्ट कंस्ट्रक्टिंग फ्रॉम द टॉप ऑफ द हिल एंड मूव डाउन स्लोप, नीचे की तरफ चलते चलते आते हैं। नाउ दिस प्रिवेंट्स न्यू टेरेसेस फ्रॉम बीइंग वाश्ड अवे, ठीक है, बाय हैवी रेन। तो जो नई हमारी टेरेस बनाई है वो अगर बरसात हो गई तो इससे नुकसान नहीं होगा। अगर आपने डाउन से लेके चला तो ऊपर वाली सबसे पहले बह के खत्म हो जाएगी। देन कटिंग कैसे करना है, फिलिंग कैसे करना है, अगेन द सेम थिंग आई एम रिपीटिंग कि ऊपर वाले पार्ट को काट के मिट्टी नीचे लाना है, ठीक है, और जितना मिट्टी कटेगा उतना ही राइजर बनेगा और उसके बाद जो है लोअर साइड में फिलिंग हो जाएगा। जब कटिंग और फिलिंग दोनों पार्ट खत्म हो गया तो हर टेरेस जो है, हर जो बेंच है उसमें हमें मिट्टी को थोड़ा कॉम्पैक्ट करना पड़ेगा, वो अदरवाइज तो वो लूज रहेगी तो बह के जाने का डर रहेगा, इट विल वॉश अवे विद द सिंगल रेनफॉल इवेंट। तो उसको कॉम्पैक्शन करने के लिए हमें जो है बहुत जरूरी है कि पहले तो हम उस पे हमारा टॉप वाला मिट्टी डाल दें और फिर compact the fill material in thin layers approximately 50 to 30 सेंटीमीटर्स, उसको थोड़ा थोड़ा जमा जमा के लेयर के अंदर जो है वो डालना है मिट्टी को। उसके बाद ऊपर टॉप आपकी फर्टाइल जो टॉप सोइल आपने रखी थी वो डाल दीजिए। अवॉइड ओवर फिलिंग, क्योंकि अगर आपने ज्यादा मिट्टी को भर दिया तो वो पानी के साथ में फिर बह के चला जाएगा, ठीक है। इसमें थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि जितना आपको मिट्टी, आपको डिजायर्ड लेवल होता है कि हमें यहाँ तक मिट्टी रखना है, उसका 10% से के आसपास आपको ज्यादा रखना पड़ेगा। नहीं तो जब बरसात आएगा तो थोड़ा बहुत मिट्टी बैठता है, यू नो दैट फैक्ट आल्सो, ठीक है। तो बरसात से जो मिट्टी दबता है वो जब दबेगा तो वो 10% का लेवल जो है वो आपका ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाएगा। तो अवॉइड ओवर फिलिंग, बट इन ईच टेरेस वाट एवर योर डिजायर्ड लेवल इज है, उससे 10% जो है ज्यादा आपको मिट्टी रखना है। नाउ कमिंग टू द ड्रेनेज पार्ट, अब बात यह है कि जो पानी आएगा वो सारा का सारा तो आपको रखना नहीं है, थोड़ा उसमें से बाहर भी निकालना पड़ेगा। तो क्रिएट ए 2% स्लोप टुवर्ड्स द डाउन होल, उसमें थोड़ा 2% के आसपास स्लोप रखिए ताकि वहां वाटर फ्लडेड नहीं रहे और आपका ज्यादा एक्सेस वाटर है वो आप बाहर चला जाए। देन राइजर प्रोटेक्शन, राइजर का जो मैंने बताया कि जो खड़े वाला पार्ट है जब वो कटिंग होने के बाद में वो तो बिल्कुल ओपन हो जाता है, तो उसका प्रोटेक्शन बहुत जरूरी है। अगर वो टूट गया तो आपकी पूरी टेरेस जो है वो खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो उसको अच्छे से उसकी शेप करनी है और उसका स्लोप जो है वो ऑलमोस्ट 1:1 उसको रखना है। और उसके ऊपर जो है कुछ ग्रासेस वगैरह ये लगा दीजिए ताकि उसका जो सोयल जो है वो खुला नहीं रहे, वो स्टेबलाइज हो जाए, उसके ऊपर कवर आ जाए
or if required you can use some stones to prevent the soil erosion. अगर वहां पे आपको ज्यादा ऐसे लग रहा है कि यहाँ प्रॉब्लम ज्यादा है, तो आप उसको पत्थर के साथ जो है कुछ घास फूस लगा के भी उसको बाइंड कर सकते हैं. टॉप सॉइल रिप्लेसमेंट, दिस ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड. देन फाइनल लेवल रीचेक, ये सेम चीज है कि आपको फाइनल प्रोडक्ट कैसा चाहिए, कितना आपका ग्रेडियंट चाहिए, कितना स्लोप चाहिए, वो सब एक बार डू प्रॉपर मेजरमेंट एंड चेक इट. अभी कुछ टिप्स जो है जो ध्यान रखने के लिए, देर आर सम ऑफ द प्रिकॉशन जो आपको ध्यान रखने की बातें हैं. वो एक तो इसमें है मेंटेन टॉप सोइल, जो बताया आपको कि जब कट और फिल वाला काम करते हैं तो ऊपर का सोइल नीचे चला जाता है, तो वो काम नहीं आता है. इसलिए टॉप सोइल को पहले हटा दीजिए, देन आफ्टर फिलिंग उसको स्प्रेड कीजिए. देन राइजर हाइट, राइजर का जो हाइट है वो 2 मीटर से ज्यादा मत रखिए, क्योंकि 2 मीटर से ज्यादा अगर हाइट होगा तो उसको मेंटेन करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है. बैलेंस वॉल्यूम, ये भी आपको मैंने बता दिया कि जो कट का वॉल्यूम है और फिल का वॉल्यूम है वो ऑलमोस्ट आप बराबर रखिए. वो अपना पहले से मेजरमेंट कीजिए कि आपको कितना फिलिंग चाहिए, कितना आपको कट करना है. वो बराबर होगा देन इट्स ओके, अदरवाइज तो ये कॉस्ट इफेक्टिव नहीं होगा. एंड इट इज वेरी डिफिकल्ट इन द हिली एरियाज टू ब्रिंग द सॉइल फ्रॉम द आउटसाइड. ये एक फिगर है जिसके अंदर आप देख सकते हो, जो दिखा रखा है ऊपर की तरफ से, फ्रॉम दिस पार्ट आपको ये लेवल मेंटेन करना है, ये वाला. तो इस पार्ट को आपको कट करना है और इस पार्ट को आपको फिल करना है. ये पार्ट आप दिख रहा है, ये कट कट वाला पार्ट है. एंड इधर जो है लेफ्ट हैंड साइड में, ये आपको फिल करके आपको इस लेवल के बराबर इसको लेके आना है, ये वाला. So this part you have to cut and you have to fill in this way. And there are so many technical terms, वो अभी इतना ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है कि कौन सा क्या वर्टिकल हाइट होता है, कौन सा राइजर की हाइट होता है, ठीक है, कौन सा राइजर का विड्थ होता है, ठीक है, कौन सा सेंटर लाइन होता है. ऑल दो थिंग्स आई एम नॉट डिस्कसिंग इन डिटेल, क्योंकि ये मतलब आप लोगों के लिए थोड़ा ज्यादा हो जाएगा. And these are the formulas for just calculating all the different parameters which just I was discussing कि रिवर्स हाइट क्या होता है, राइजर का हाइट क्या होता है, राइजर का विड्थ क्या होता है, टेरेस का विड्थ क्या होता है, लीनियर लेंथ कौन सा होता है, नेट एरिया कितना कैसे निकलता है, परसेंट ऑफ बेंच कैसे निकलता है. ऑल दोस फॉर्मूलाज आर गिवन हियर, बट नो नीड टू वरी, आप उसके ज्यादा डिटेल में मत जाइए. बिकॉज आई वांट टू जस्ट क्लियर द कंसेप्ट कि हिली एरिया के अंदर जो है कैसे बनाते हैं, क्या उसका पर्पज होता है, कितनी कितनी टाइप की होती है. दोज थिंग्स आई वांट टू जस्ट डिस्कस विद यू पीपल. नाउ कमिंग टू दी these some of the practices which the farmers are practicing right now at this time. अभी जो मैंने आपको बताया, इवन इन इन इंडिया, इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया पर्टिकुलरली, अपातानी सिस्टम जो है फार्मर का, फार्मिंग का, दैट इज आल्सो ए ब्रॉड बेंच टेरेस. ठीक है, एंड दिस इज यूनेस्कोज वर्ल्ड हेरिटेज साइट. अभी मैं आपको इसको धीरे धीरे इसको मैं आपको बताऊंगा कि ये क्या है. दिस सिस्टम इज बीइंग फॉलोड इन अरुणाचल प्रदेश बाय ए पर्टिकुलर ट्राइब, अपातानी ट्राइब. ये अपातानी एक ट्राइब है, ठीक है, और ये जीरो वैली है एक, वहां पे ये ट्राइब है खाली, उस एरिया के अंदर ये इसको फॉलो करते हैं. और वो क्या करते हैं, दे आर कल्टिवेटिंग पेडी, और उसके साथ साथ जो मछली है उसको भी वो पालन करते हैं, उसका भी. ठीक है, पेडी कम फिश कल्टीवेशन. अभी सबसे बड़ी बात ये है कि ये बहुत सालों से लोग, जब से मतलब ये ट्राइब्स है तब से इस सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं. बट टिल डेट द प्रोडक्टिविटी ऑफ पेडी एज वेल एज द सिस्टम इज वेरी हाई इन कंपेरिजन टू अदर सिस्टम विच आर बीइंग फॉलोड इन द स्टेट. ठीक है, तो ये जो प्रैक्टिस है ये अपातानी ट्राइब के द्वारा फॉलो कर जा रही है.
ईयरली सस्टेन्ड यील्ड, हर साल जो है यील्ड एक एक पर्टिकुलर लेवल तक सस्टेन है, उसमें कोई डाउनफॉल नहीं आ रहा है। ठीक है। और ये किस पे डिपेंडेंट है, इसकी सॉइल की फर्टिलिटी कैसे कैसे मेंटेन करते हैं ये, कि जो पानी पूरा हिल से आता है, तो हिल के साथ में जो जितनी भी टॉप फर्टाइल सॉइल बह के आती है, वो सारी की सारी मिट्टी ये अपने खेत में डाल लेते हैं। वो न्यूट्रिएंट सारे के सारे पानी के साथ जो आते हैं, दे दे आर यूटिलाइजिंग दोज न्यूट्रिएंट है। तो इस हिसाब से ये अपनी फर्टिलिटी को रिस्टोर करते रहते हैं। और this type of practice that protect soil erosion and landslide happenings। ठीक है। और अगर बाकी सिस्टम से देखें, पैडी का एवरेज जो प्रोडक्शन है, प्रोडक्टिविटी है, उससे इस सिस्टम में 3 to 4 times हायर प्रोडक्शन वी आर गेटिंग। ये देखिए इस टाइप का जो है स्ट्रक्चर है, ये बहुत चौड़ी चौड़ी जो है इसमें वो है, टेरेस जो है वो बनी हुई है। अभी इनका किनारा जो है वो थोड़ा सा बड़ा होता है, बहुत ही मजबूत बनाते हैं ताकि ये ब्रेक नहीं हो। और ये हायर साइड से लोअर साइड की तरफ चलता है, और स्लोप परसेंट जो है वो 8 to 10% ही होता है। ऊपर के टेरेस में से जो है पानी को निकालने के लिए इस टाइप के ये चैनल बना रखे हैं। तो ज्यादा पानी होता है तो वो ऊपर वाली टेरेस से नीचे की तरफ आता रहता है। और ये जो पैडी जो लगाते हैं, इसी के अंदर जो है वो फिंगरलिंग्स डाल देते हैं, तो साथ में फिश का भी प्रोडक्शन होता है। अभी मेन इसका ये है कि जैसे ये कोई एक स्ट्रीम आ रहा है हिल की साइड से, तो ये जितने भी जैसे वाटर की स्ट्रीम्स आ रही है, उसको जो वैली का पार्ट है वहीं पे ये इसको इकट्ठा कर लेते हैं, एंड देन दैट वाटर इज चैनलाइज्ड थ्रू डिफरेंट चैनल्स। दीज थिंग्स आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन कि भाई ये जो सिस्टम है इसमें ये जो टेरेस बनाते हैं वो थोड़ा चौड़ा होता है, इट इज परफेक्टली लेवल्ड। और स्लोप जो है वो 8 to 10% होती है। नो, ये 3 साल तक जो है इस सिस्टम के अंदर चीजों को मॉनिटर किया गया, उसमें देखा कि नाइट्रोजन जो है वो ऑलमोस्ट 3 साल के बाद जो है 28% के आसपास ज्यादा हो जाता है। फॉस्फोरस जो है ऑलमोस्ट 44% के आसपास ज्यादा हो जाता है। पोटेशियम जो है ऑलमोस्ट 6.5% के आसपास ज्यादा हो जाता है। ऑर्गेनिक मैटर भी ऑलमोस्ट 28.2% ज्यादा हो जाता है। वेयर एज दी मिथेन इमिशन जो है वो 30% के आसपास कम होता है। और if we compare the methane emission rate with the other system, other means सोल राइस सिस्टम, तो आप देखिए कि इसमें जो है सोल राइस में है 4.73, वेरेज इन राइस फिश सिस्टम जो अपातानी सिस्टम है उसमें है 1.71। सो इट इज ड्रास्टिकली रिड्यूस्ड इन द राइस फिश सिस्टम। Second system I want to just discuss is Jabo farming system which is being practiced in the नागालैंड। और ये एक डिस्ट्रिक्ट है फेक, उस फेक डिस्ट्रिक्ट में भी एक पर्टिकुलर गांव है किक्रूमा, उस गांव के लोगों ने इस सिस्टम को डेवलप किया हुआ है। और कहीं ज्यादा देखने को नहीं मिलता, खाली उसी एरिया में है किक्रूमा विलेज के। इसमें क्या करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ कि जो ऊपर वाला पार्ट है हिल का, उसको एज इट इज वो कैचमेंट एरिया रखते हैं, वहां से कोई पेड़ नहीं रखते, पूरा का पूरा फॉरेस्ट एरिया रखते हैं। फिर नीचे की तरफ जो है वो वाटर हार्वेस्टिंग पॉन्ड बनाते हैं जो लगभग बीच में होते हैं। और नीचे जो है वो पैडी फील्ड्स रखते हैं। और उसके आसपास थोड़ा सा ऊपर जो है वो कुछ लाइव स्टॉक जो है वो जैसे पिगरी है, पोल्ट्री है, कैटल है, जो भी रखते हैं उसके लिए अपना एक छोटा सा जो यार्ड बना के रखते हैं। अब जो जितने भी आपके पानी के जो टैंक है, वाटर हार्वेस्टिंग टैंक है, उनसे पहले वो
रिटेंशन टैंक्स रखते हैं, सेडिमेंट रिटेंशन टैंक रखते हैं। क्यों? क्योंकि ऊपर से जो पानी आता है उसके अंदर बहुत मिट्टी वगैरह मिली होती है, तो वो मेन वाटर हार्वेस्टिंग टैंक में उस मिट्टी को नहीं ले जाना चाहते, इसलिए पहले जो है सेडिमेंट रिटेंशन टैंक बनाते हैं। और उसके बाद जो है, जो वाटर हार्वेस्टिंग टैंक है वहां से ग्रेविटी के खाली सोर्स से ही, ग्रेविटी से ही ये पानी को इरिगेशन के लिए काम लेते हैं। सी, दिस इज द टिपिकल स्ट्रक्चर। ये जो ऊपर वाला एरिया आपको दिखाई दे रहा है, दिस इज द कैचमेंट एरिया वेयर ऑल दी फॉरेस्ट प्लांट्स आर रिटेन्ड एज इट इज। इसमें से किसी भी प्लांट को काटने नहीं देते वो, किसी को भी। ठीक है। और इसके अंदर एक चैनल का एग्जांपल लेके दिखाया हुआ है, दिस इज वन चैनल विच इज कमिंग फ्रॉम दिस कैचमेंट एरिया। ऐसे बहुत उसमें नेचुरल जो है वो चैनल होते हैं, और ईच चैनल इज डेजिग्नेटेड फॉर ए पर्टिकुलर फैमिली। ये जो चैनल है, हर चैनल को एक एक परिवार देखता है। उनकी जिम्मेदारी है कि इस चैनल को मेंटेन करें और इस कैचमेंट एरिया को मेंटेन करें। कोई भी प्लांट कोई भी नहीं काट सकता, बिकॉज दे आर दी गार्जियन फॉर दिस कैचमेंट एरिया। अगर ये कैचमेंट एरिया ही नहीं रहेगा तो बरसात भी कम होगा, पानी नहीं आएगा। नाउ दैट दिस चैनल इज कमिंग लाइक दिस। ठीक है। और ये पहले जो है वो आपका सेडिमेंट रिटेंशन टैंक या सिल्टेशन टैंक है। इस पर टैंक में पहले पानी आता है, सिल्ट सारा डिपॉजिट होता है, और फिर जो ऑलमोस्ट फिल्टर्ड वाटर है वो जो है निकल के जो आपका वाटर स्टोरेज टैंक या वाटर हार्वेस्टिंग पॉन्ड जो है उसमें आता है। दिस इज वाटर हार्वेस्टिंग पॉन्ड। अब जब जरूरत पड़ती है पानी की, तो यहाँ से पानी ये वापिस लेते हैं, और ये कैटल शेड बना हुआ है, इस कैटल शेड के अंदर से पानी को लेके आते हैं। तो पानी में क्या होता है कि जब कैटल शेड के अंदर आता है तो एवरी डंग, यूरिन एंड अदर मटेरियल दैट इज डिजॉल्व इन दिस वाटर, और उस पानी में इसके साथ ही न्यूट्रिएंट डिजॉल्व हो जाते हैं। सो दैट मीन्स दिस न्यूट्रिएंट रिच वाटर इज कमिंग टू दी पैडी फील्ड। और उसमें कुछ बीच में जो है ये वेजिटेबल्स वगैरह भी लगाते हैं, तो मेनी टाइम्स दे यूज दिस वाटर टू इरिगेट इवन वेजिटेबल क्रॉप्स आल्सो। और दीज आर दी पिक्चर्स। ये देखिए, ये वो गांव है किक्रुमा, और ये एक आप एग्जांपल देख सकते हैं। दिस टाइप ऑफ चैनल इज कमिंग फ्रॉम द कैचमेंट एरिया, यू कैन सी दिस चैनल। एंड nowadays they are constructing the पक्का टाइप ऑफ सिल्टेशन टैंक। यहाँ से पानी आता है, और इसका जो है ये पार्ट तो जो है लोअर साइड में बना होता है, सिल्ट बैठता है। यहाँ जो ड्रेनेज इसका ऊपर से जो बाहर निकलने का है वो ऊपर होता है, तो जो है सिल्ट नीचे बैठ जाता है। देन दिस वाटर इज कमिंग आउटसाइड। और लास्ट में ये देखिए, यहाँ क्लियर दिख रहा है कि यहाँ से जो है पानी आएगा, यहाँ से निकलेगा, देन इट इज कमिंग टू दिस वाटर हार्वेस्टिंग टैंक। अभी इसमें भी जो है आप देखिए कि सीड रेट ये थोड़ा ज्यादा रखते हैं, तो मैक्सिमम जो है 60 के आसपास और मिनिमम 15 के आसपास। अगर यील्ड को देखें तो पैडी में मैक्सिमम 80 किलोग्राम पर हेक्टर है और मिनिमम 40 है। फिश का अगर देखें तो 2500 और मिनिमम 1400 के आसपास इसमें मिलता है। नाउ द थर्ड सिस्टम इज, ये एक जो झूम फार्मिंग आपने सुना होगा उसका थोड़ा मॉडिफाइड सिस्टम है। इसमें क्या करते हैं कि पूरे जंगल को पहले जब झूम में साफ कर लेते थे, नाउ बिकॉज द झूम साइकिल इज रिड्यूस्ड, तो वो थोड़ा इसमें जो है प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, इसीलिए इस सिस्टम को मॉडिफाई कर लिया। एंड दैट इज आल्सो इन्वेंटेड फ्रॉम द फार्मर्स ऑन देयर नेटिव विजडम। उन्होंने अपने जरूरत के हिसाब से इसको मॉडिफाई किया। एंड व्हाट दे आर डूइंग कि यहाँ जो है वो टेरेस बनाते हैं, बट दीज टेरेस आर रेज्ड। ये मतलब रेज टाइप की बेड टाइप में बनाते हैं। ये इधर आपको राइट हैंड साइड में यू कैन सी दिस टाइप ऑफ टेरेसेस और बेड्स। इसको कैसे करते हैं वो मैं बताता हूँ। इसमें बड़े ट्री को जो है वो जनरली ये नहीं काटते। ठीक है। जितने भी वीड्स है, जो छोटे छोटे श्रब्स है,
उनको सबको काट के एक बार थोड़ा सा ये ड्राई होने के लिए 5-7 दिन इसको छोड़ देते हैं। 5-7 दिन छोड़ने के बाद में ये उनको उनकी पाइलिंग करते हैं, जैसे इनको बेड बनाना होता है उसी हिसाब से उनको सेट करते हैं ये। और उसके बाद में उसके ऊपर ये मिट्टी डाल देते हैं। ये जो डाल रखी है, ये नीचे इसके आपका जो जितना भी वीड वगैरह है जो और श्रब्स है वो थोड़ा सेमी ड्राइड कंडीशन में है, वो है। इसके ऊपर इन्होंने मिट्टी डाल दी, ठीक है। और ये इस टाइप से इसको स्लोप के ऊपर ये ऐसे खड़े वो बनाते हैं। मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, ये सब है। दीज आर डिफरेंट रेज टेरेस और रेज्ड बेड्स, ठीक है। अब इसमें करते क्या है कि ऊपर मिट्टी डालने के बाद में इसमें वो आग लगा देते हैं। आग लगा देते हैं तो ये इसमें क्या है, ऊपर मिट्टी होने से दिस बर्निंग इज इन पार्शियल ऑक्सीजन कंडीशन और मे बी इन इनऑक्सिक कंडीशन। हवा ऑक्सीजन सप्लाई जो है वेरी लिमिटेड, उसमें जब ये बर्निंग होती है तो if we burn any organic material in inoxic condition at high temperature, maybe around 450 to 500 degrees centigrade, then this technique is called, ये जो है एक अल्टीमेटली इसमें प्रोडक्ट बनता है जिसको हम बोलते हैं बायोचार, और इस टेक्निक को पायरोलिसिस बोलते हैं। तो ये अल्टीमेटली क्या है कि बिकॉज इन हिली एरियाज एवरीवेयर यू विल फाइंड एसिडिक सॉइल्स, और एसिडिक सॉइल जो है उसको रिक्लेम करने का बायोचार एक बहुत ही अच्छा तरीका है। बट फार्मर्स दे आर नॉट नोइंग द फैक्ट, उनको पता नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं, बट अननोइंगली दे आर प्रिपेयरिंग द बायोचार, और उससे उनका सोयल पीएच जो है वो बढ़ जाता है एंड दे आर गेटिंग गुड यील्ड। और ये इस टाइप की जो रेज बेड है उसमें वो पर्टिकुलरली पहले तो रूट क्रॉप्स ही लेते थे, लाइक दिस जिंजर, टर्मरिक, पोटैटो, स्वीट पोटैटो। बट अभी जो है थोड़ा रिफाइनमेंट आया, नाउ दे आर टेकिंग मेनी टाइप ऑफ वेजिटेबल्स आल्सो, ठीक है। ये नीचे वाला फोटोग्राफ यू कैन सी दिस। नाउ here we have compared this modified thangboon farming system इन ओरिजिनल जूम फार्मिंग सिस्टम, जिसमें पहले ओपन बर्निंग किया करते थे। नाउ हियर यू कैन सी इन केस ऑफ जिंजर द फर्स्ट ईयर यील्ड इन टन पर हेक्टर, particularly in ginger, in open burning in zoom condition it is less, and in thangboon it is higher. In the same way, in case of potato, you will find more yield in thangboon system in comparison to open burning case. And even in second year also, for upland patty, you can see the higher yield in the thangboon farming system. ये वेजिटेबल्स लगा रखे हैं इसी टाइप की, ये इनको बून्स बोलते हैं, ठीक है। रेज्ड बेड है एंड दिस इज द लार्जर व्यू। इसमें आप देख रहे हो इस टाइप की इसमें आपको टेरेस जो बनी हुई दिखती है। Now, just now I have explained that unknowingly the farmers they are preparing biochar, and that biochar is improving the soil pH and all the associated properties which improve the soil acidity. अब आप इसमें देखिए कि फर्स्ट ईयर में बिफोर बर्निंग आप सारे पैरामीटर देखिए, पीएच कितना है 4.28। फर्स्ट ईयर में ही जब बर्निंग कर लिया इन्होंने तो कितना हो गया 5.52। अब ये एक से भी ज्यादा पीएच बढ़ गया, और इतना पीएच बढ़ गया तो आपका यील्ड बहुत अच्छा इंप्रूव हो सकता है। लाइकवाइज इन सोयल ऑर्गेनिक कार्बन बिफोर बर्निंग इज 1.63, अब आफ्टर बर्निंग इज 2.76। कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी 7.28, आफ्टर बर्निंग 10.65, बल्क डेंसिटी 1.41, आफ्टर बर्निंग 1.16, ठीक है। बिकॉज वन बल्क डेंसिटी इज बीइंग रिड्यूस्ड, जो अच्छा होता है, ठीक है। लाइकवाइज अवेलेबल एनपीके ये जो है वो बढ़ रहे हैं, बट इन केस ऑफ एल्यूमिनियम यू सी एल्यूमिनियम 1.56 एंड इट इज ड्रास्टिकली रिड्यूस्ड आफ्टर बर्निंग, जो कि सोयल एसिडिटी को जो है
इम्प्रूव करता है। जितना एल्यूमिनियम ज्यादा होगा, सोयल एसिडिटी जो है वो, सोयल पीएच जो है कम हो जाएगी। नाउ द बेनिफिट्स इज दैट ये जो टेरेस है, जितने भी मैंने आपको बताई है, ये आपका रन ऑफ और सेडिमेंटेशन लॉस है उसको कम करता है। इसका मतलब सॉइल को कंजर्व करता है, वाटर को कंजर्व करता है। एट इट इंश्योर सस्टेनेबिलिटी। सॉइल मॉइस्चर कंटेंट मैंने आपको पहले भी बताया था, इट इज ऑलमोस्ट इंक्रीजिंग बाई 13%। तो ये जो है मॉइस्चर ज्यादा होगा तो आपकी क्रॉप जो है वो बड़ी अच्छी होगी। Then the examples I have given this our site also, Apatani rice terrace system of India. Then in Philippines we have rice terrace system, and in China also the honey rice terrace. These are also famous. These are UNESCO heritage sites. So in conclusion, I want to say that the traditional terrace farming system that plays a very major role, and this major role is particularly for better utilization of the hill slopes. हमारे को जो लैंड है वो आपको बताया कि इट इज वेरी प्रीशियस। तो हमें जो स्लोप्स है उनको यूटिलाइज करना है जितने भी, ताकि हम अपने कल्टीवेटेड लैंड है उनको बढ़ा सकें। And these terrace is very useful for reducing soil erosion in the hilly areas, for increasing the soil moisture content, and ultimately for increasing the crop yield, for ensuring the food security, so that we can feed our ever growing population. And friends, definitely you have seen that we have shifted from Zoom farming system to Boon farming system. So likewise, we need blending of innovation. Now you see that science is progressing well, technologies are coming. So we can't deny those techniques, those technologies, but the wisdom with which we have from our ancestors, that is also very much useful for we people. But because our present day needs, that those has changed drastically, so to fulfill our present day needs, we need a blending of science and technology innovation with the Indian knowledge system which our ancestors have. So this much is okay. Thank you very much for patience listening, and of course I must thank the organizers, particularly Dr. Jitendra Mehta, for providing me this opportunity to be here and just interact with you on a topic which uh, which is very important for hilly areas. And of course the Vital Biotech and the Agriculture Forum for Technical Education of Farming Society. I must convey my sincere thanks that they are organizing such a beautiful event for a 21 days long duration, long period. I hope that you people have enjoyed a new terrain, and if there is any query, if any doubt, you can ask me. Uh, at any time, you can ask. Right now, I am available here. You can ask me. Thank you so much, sir, for Thank enlightening you, us sir. on such an informative session. So there are several queries of the participants. So Ankit Kumar Singh is asking, is the terrace farming cause major role in soil degradation in hilly areas? Pardon? Is the terrace farming causes major role in soil degradation in hilly areas? Yes, definitely. Soil degradation, it is controlling, right? Because otherwise तो hills में you can see that whenever we have high rainfall, ठीक है, even in Meghalaya we have world's highest rainfall, not of our country, world's highest rainfall in Meghalaya. And if such type of rainfall event is there, so the slopes, they are very, you can say the uh, very sensitive, and all the top fertile soils that is washed away. So that is soil degradation. But if we are just modifying the slopes
in the form of terrace. So the soil conservation takes place, right? थैंक यू सर फॉर योर रिस्पॉन्स. सो देयर इज वन मोर क्वेरी. बर्न के बाद सॉइल की बेनिफिशियल माइक्रोब्स भी डेड हो सकते हैं? ये पूछा है सुहेल रंजन ने. उसने पूछा है सर, मैं रिक्वेस्ट करूंगी आप हिंदी में ही करें नहीं नहीं, क्या कह रहे आंसर. हैं बर्न ये? के बाद सॉइल की जो बेनिफिशियल माइक्रोब्स हैं वो भी डेड हम्म, हो सकते हैं क्या? बर्न के बाद अगर सॉइल के बेनिफिशियल माइक्रोब्स हैं वो भी बहने क्या के डेड बाद, हो सकते हैं? वॉशिंग के बाद में। सर बर्न पूछा है, अच्छा, बर्न के बर्निंग के बाद. बाद में, नो नो नो, इट इज नॉट लाइक दिस। ठीक है, देखिए, सोयल बायोटा जो है या सोयल माइक्रोब्स जो है, वेयर एवर वी हैव हाई ऑर्गेनिक मटेरियल और हाई ऑर्गेनिक कार्बन कंटेंट, ठीक है, तो ये जो है वो ज्यादा होते हैं उस पे। ठीक है, और जो बर्निंग होता है उसके बाद जितना भी बायोमास जो जब बर्न होता है, हाउ इट इज इंक्रीजिंग द सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन कंटेंट, जस्ट नाउ आई हैव शोन यू। ठीक है, तो ये तो उल्टी का मतलब ज्यादा एक्टिव होके उसमें काम करते हैं। मे भी थोड़ा बहुत कोई टॉप लेयर पे कुछ होता है तो हो सकता है कोई नुकसान, अदरवाइज देयर इज नो ड्रास्टिक चेंज इन दी सॉइल माइक्रोबियल पॉपुलेशन। एनी अदर क्वेरी? तो पार्टिसिपेंट में ड्रॉप देयर क्वेरीज इन चैट बॉक्स. So, sir, we can wait 1 more minute so that they can drop their queries in chat box. For PPT, don't worry, we will be compiling the all the presentation. I will be sharing you through the mail. Please wait. I have already answered the queries. Don't worry about the PPT lecture and your notes. We will be sharing through email after compilation of the PPTs and the lecture notes. So if there is no queries, so thank you so much, sir, for enlightening us and gracing the session with your presence and your informative session for today's lecture note. So moving forward, now I take this opportunity to express my heartfelt gratitude and propose a vote of thanks. On behalf of organizing committee, institution, I, Dr. Nisha Rana, extend sincere thanks to Professor Sanjay Swami, Speaker of Day 4, President AFTF Society, Dr. Jitendra Mehta sir, for organizing this event, and our organizing university, Rani Lakshmi Bai Central Agriculture University, Jhansi, University of Agriculture Sciences, Raichur, Swami Vivekanand Subharti University, Meerut, GD Goenka University, Gurugram, Sant Guru Vishwavidyalaya and other institutions, AFTEFS Society and Vital Biotech Education Group, faculty members, experts, our technical support team, research scholar and students, and all participants who have joined us from different parts of the country. Your presence has made this technical session truly meaningful and memorable. With this, we conclude day 4. All participants are now requested to please join tomorrow at 6 p.m. Wishing everyone a productive, enriching, and successful 21 days Krishi Manthan summer training program. Stay connected, keep learning. Jai Hind to all. ओके, थैंक यू डॉक्टर निशा। Thank Thank you, you, sir. sir. Nice to Nice see you. presentation. हाँ ठीक है जितेंद्र जी। See you soon in physical form of some other conferences. जी सर, हाँ मिलेंगे बहुत I जल्द, मिलेंगे hope so, कभी। बहुत sir, जल्द। you will be joining through the physical mode and Dr. Mehta will be organizing a physical conference. लास्ट टाइम वेट करते रह गए सर आपका। अरे क्या बताएं, तो वो ऐसा ही है ना, टाइम के ऊपर चीजें नहीं हो पाती है कई बार, जी जी है जी। ना। यार थोड़ा हम्म, बिजी रहता है शेड्यूल. इस अच्छा, इस बार बार करेंगे कोशिश कीजिएगा. सर, इस हाँ बार हाँ आपको वो 6 महीने पहले बताएंगे एडवांस में। हाँ, प्रायर इन्फॉर्मेशन. सर इस बार प्रायर इन्फॉर्मेशन से रखेंगे. ऑनलाइन प्लेटफॉर्म इसीलिए अच्छे होते हैं कि हाँ कनेक्टिविटी भी रहती है और फिर ये भी है कनेक्शन हो जाते हैं, अवेलेबिलिटी मैच हो जाती है. हाँ। फिजिकल में टाइम तो जाता है. चलो ठीक है, लो। ठीक है, थैंक यू सो मच सर फॉर ओके, ज्वाइनिंग. थैंक यू, थैंक यू। जय हिंद टू ऑल.